Dear students, today we will start the topic Kirchhoff laws from Unit 2 Current Electricity. Actually, there are two rules given by Kirchhoff and both of them are known as Kirchhoff laws. The first rule of Kirchhoff is known as KCL, that is Kirchhoff's current rule. And the second rule is named as KVL, the Kirchhoff voltage rule. First rule is all about current, that's why it is known as KCL. And second rule is all about voltage, that's why it is known as KVL. In this video, we will discuss about the first rule, that is the Kirchhoff's current rule. Kirchhoff's current rule states that the algebraic sum of all the currents meeting at a junction is equal to 0. That is, summation I is equal to 0. What does it mean? It means that the algebraic sum of all the currents, meeting at a junction is 0. What is junction? किरचॉफ करंट रूल ने कहा कि जितने भी करंट किसी जंक्शन पे मीट करते हैं उन सब का अलजेब्रिक सम हमारे पास क्या है? 0 है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जंक्शन होता क्या है. तो बेटा, दो या दो से ज्यादा करंट जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन. जैसे अगर हम इस छोटे से सर्किट की यहां बात करें, there are 5 currents I1, I2, I3, I4 and I5. The point O is named as junction. Second is algebraic sum. What is algebraic sum? Algebraic sum का मतलब क्या होता है बेटा? Algebraic sum का मतलब हमें algebra भी यूज करना है. यानी I1, I2, I3 अगर O पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास साइन हमें लेना है इनके लिए पॉजिटिव. यानी I1, I2, I3 these are incoming currents. The sign will be taken as positive for them. And I4 and I5 are meeting away from the junction. जो दो currents हैं I4 and I5, they are moving away from the point O. So they will be taken as negative. तो इन सब currents का I1, I2, I3, I4, I5 इन सब करंट्स का algebraic sum हमारे पास क्या होगा? 0. This is a sign for summation. This represents total. Total amount of current flowing through a junction is 0. Mathematically, we can write it as I1, I2, I3. These are taken as positive. I1, I2, I3 ये तीनों करंट्स जंक्शन O की तरफ मूव कर रहे हैं. They are named as incoming currents and they are taken as positive. Plus I1, plus I2, plus I3. I4 and I5 are moving out of the junction. That's why they are taken as negative. And the total algebraic sum is equal to 0. Now I1, I2, I3, we have to keep these at left hand side. I4, I5 right hand side में ले गए, they becomes positive. I1, I2, I3 these three are the incoming currents. So I1 plus I2 plus I3 can be written as sum of incoming current. And I4 and I5 these are the outgoing currents. So I4 plus I5 can be written as sum of outgoing current. So the statement for Kirchhoff current rule can also be written as the sum of incoming current is equal to the sum of outgoing current in a junction. यानी किरचॉफ के फर्स्ट रूल यानी KCL किरचॉफ करंट रूल ने हमें क्या कहा बेटा कि किसी भी जंक्शन पे जितने भी करंट्स मीट करेंगे, चाहे वो इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो, जितने भी करंट्स किसी जंक्शन पे मीट करेंगे उनका अलजेब्रिक सम हमें क्या लेना है? 0. अलजेब्रिक का मतलब इनकमिंग का करंट्स जो है उनके आगे साइन आपने पॉजिटिव लेना है और जो आउटगोइंग करंट्स है उनके आगे आपने साइन नेगेटिव लेना है. अब KCL यानी फर्स्ट रूल के ऊपर बेस्ड हम ये न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे.
In this numerical, you have to determine the value of unknown current in the given circuit. I जो हमारे पास unknown current है, इस करंट की हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो हम ये सिंपल सर्किट देखेंगे बेटा। सबसे पहले हम इस जंक्शन की बात करें। हमें यहाँ पे जो I करंट है इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ये जंक्शन ले लिया। 2 एम्पियर करंट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस जंक्शन, 3 एम्पियर इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स दिस जंक्शन। 2 एम्पियर भी इधर मूव कर रहा है और 3 एम्पियर भी इधर मूव कर रहा है। दोनों इनकमिंग करंट्स हैं, तो दोनों एड अप होके हमें क्या दे देंगे, 5 एम्पियर। ये थर्ड करंट हमें मिल गया। इधर से 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर आ रहा था, दोनों इनकमिंग करंट थे, ऐड होके हमें कितना मिल गया, 5 एम्पियर। इस वायर में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। 5 एम्पियर में से कितना आउटगोइंग करंट है जो इस वायर में चला गया, दैट इज 1.5 एम्पियर। टोटल करंट यहाँ 5 एम्पियर आ रहा था, उसमें से आउटगोइंग करंट कितना है, 1.5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर में से हमने 1.5 एम्पियर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारे पास करंट कितना बच गया, वी आर लेफ्ट विद 3.5 एम्पियर करंट। हमारे पास यहाँ पे 3.5 एम्पियर करंट है। अब इस जंक्शन की अगर हम बात करें, इस जंक्शन की तरफ इधर से जा रहा है 3.5 एम्पियर और इधर से आ रहा है 2.5 एम्पियर। तो इस पॉइंट पे हमारे पास टोटल करंट कितना हो गया, 3.5 प्लस 2.5 दैट इज 6 एम्पियर। तो अननोन करंट हमारे पास क्या आ गया बेटा, 6 एम्पियर। इसको हमने मैथमेटिकली डिराइव कर दिया। 2 प्लस 3 दोनों एड अप हो गए, फिर 1.5 उसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, आउटगोइंग था, फिर इनकमिंग था 2.5, वो एड अप हो गया। आपने इसको सॉल्व किया एंड यू गेट करंट एज 6 एम्पियर। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। In this numerical, we have to calculate the current of I in the section of network shown in figure. This is a complex circuit. In this circuit, we have to determine the value of currents. There are 4 unknown values of current in this circuit. That is I1, I2, I3 and I4. हमें चारों वैल्यूज बेटा फाइंड आउट करनी है करंट की कितनी है। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारे पास अगर हम जंक्शन ए की बात करें, ए जंक्शन पे 15 एम्पियर करंट इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ये इनकमिंग करंट है। इसमें से 8 एम्पियर करंट क्या है, आउटगोइंग। 15 इसकी तरफ आ रहा था और 8 इसमें से बाहर जा रहा था, यानी हमारे पास यहां कितना करंट आ गया, 7 एम्पियर। 15 इनकमिंग था, उसमें से कितना माइनस कर देना है, कितना आउटगोइंग है, बाहर कितना जा रहा है, 8। तो I2 हमारे पास यहां कितना आ गया, 7 एम्पियर। अब अगर हम जंक्शन बी की बात करें, 7 एम्पियर करंट इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन बी। सिमिलरली 3 एम्पियर करंट इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन बी। यहां से 7 एम्पियर करंट आ रहा है बी की तरफ और यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है। तो इस आर्म में टोटल एडअप होके करंट हमें कितना मिल जाएगा, 7 प्लस 3 यानी 10 एम्पियर। यानी I4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, 10 एम्पियर। नाउ ये 2 अननोन्स हैं, हमें यहां से पहले इसको निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम जंक्शन डी की बात करें, 8 एम्पियर इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट डी। जंक्शन डी की तरफ 8 एम्पियर मूव कर रहा है और 5 एम्पियर आउट गोइंग है। डी से अगर हम देखें तो 8 एम्पियर करंट जो है वो डी की तरफ मूव कर रहा है, यानी इनकमिंग करंट है, और 5 एम्पियर करंट डी से बाहर मूव कर रहा है, यानी आउट गोइंग करंट है। तो इस आर्म में हमारे पास करंट कितना होगा, इनकमिंग 8 और आउट गोइंग 5, यानी 8 माइनस 5 दैट इज 3 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ I3 कम्स आउट टू बी 3 एम्पियर। नाउ कम टू दिस जंक्शन। अब हम इस जंक्शन में I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। If we consider junction C, then 10 ampere current is moving towards the junction. 10 ampere current junction C की तरफ मूव कर रहा है। This is incoming current. Similarly, I3, 3 ampere is also moving towards the point C. It means at point C, 10 ampere and 3 ampere both are incoming currents. They will add up and we will get I1 as 13 ampere. इसी तरीके से हमने इसको मैथमेटिकली भी चारों जंक्शंस के लिए लिख देना है।
I hope you understand these numericals as well as you understand the Kirchhoff current rule. In the next video, we will discuss about the Kirchhoff voltage rule. Thank you.